हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। हाँ जी बेटा ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ 10 ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਥਰੂ 8 to 9 ਵੀਡੀਓਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਰਾਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਵਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀ ਸਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਇਨ ਕਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਮਾਧਿਅਮ 'ਚ ਲਾਈਟ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਅਪਵਰਤਨ। ਹੋ ਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਲੈਬ ਆ ਕੱਚ ਦੀ ABCD, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੱਚ ਦੀ ਸਲੈਬ ਰੱਖੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਕਿਰਨ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਾਤੀ ਕਿਰਨ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਲੈਬ ਰੱਖੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੇਟਾ ਆਈ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਗਲਾਸ ਸਲੈਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਰੋਤ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ ਡਿਵਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਪੈਰਲਲ ਬੀਮ ਰੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਕੇਵ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੇਜ਼ਰ ਟਾਈਪ ਲਾਈਟ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਈਏ, ਉਹ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਲਾਈਟ ਰੇ, ਇਹ ਹਵਾ ਆ ਉੱਪਰ, ਹਵਾ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹ ਕੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹਵਾ ਅਤੇ ਕੱਚ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਵਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਸ ਹੈ ਔਰ ਕੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਲਿਡ ਹੈ। ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਪੈਕਡ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਪੈਕਡ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੰਘਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਭੀੜ ਭਰਿਆ ਇਲਾਕਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਦੌੜ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਦੌੜ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਭਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਸਪੀਡ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਭਰਿਆ ਇਲਾਕਾ, ਸਾਡੀ ਸਪੀਡ ਹੋਰ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਟ ਲਈ ਵੀ। ਸੋ ਲਾਈਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆ ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਪਤੀ ਕਿਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਆ ਸਰਫੇਸ ਉੱਤੇ, ਸਿੱਧੀ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਬੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਅਭਿਲੰਬ। ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਟੌਪਿਕ, ਔਰ ਨਾਰਮਲ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਐਨ ਪੁਆਇੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਅਭਿਲੰਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਤੀ ਕਿਰਨ ਹੋ ਗਈ। ਅਭਿਲੰਬ ਅਤੇ ਆਪਤੀ ਕਿਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ? I1। ਕਲੀਅਰ, ਆਪਤਨ ਕੋਣ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਫੇਸ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਲੰਬ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਅਭਿਲੰਬ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਈ, ਸਿੱਧੀ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਸਕੇਲ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਸਿੱਧੀ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਅਭਿਲੰਬ ਵੱਲ ਟਰਨ ਕਰ ਗਈ, ਘੁੰਮ ਗਈ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰੇ ਜਾਂ ਕਿਰਨ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ 'ਚ ਦੂਜੇ ਮਾਧਿਅਮ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪਾਥ 'ਚ ਬੈਂਡਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦ ਬੈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਲਾਈਟ ਫਰੋਮ ਮੂਵਿੰਗ one medium to another, this is known as refraction of light ਜਾਂ ਅਪਵਰਤਨ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ R1 ਲੈਣਾ। ਸੋ R1 ਲਿਆ। R1 ਕਿਹੜਾ ਕੋਣ ਹੈ? ਅਪਵਰਤਨ ਕੋਣ। ਕਿੰਨਾ ਅਪਵਰਤਨ ਆਇਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਮੁੜ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੀਡੀਅਮ ਨੂੰ ਕੱਚ ਤੋਂ ਹਵਾ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਵਾ 'ਚੋਂ ਲਾਈਟ ਗਈ, ਕੱਚ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਚ 'ਚੋਂ ਹਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਦੋ ਮਾਧਿਅਮ ਲੈ ਰਹੇ ਇਹ ਵਾਲੇ, ਮਤਲਬ ਕੱਚ 'ਚੋਂ ਹਵਾ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਲਾਈਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ, ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੁਝ ਬੇਟਾ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਇਸ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਮਾਧਿਅਮ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬੈਂਡ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ ਬੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ? ਸੇਮ ਨਾਰਮਲ ਡਰਾ ਕੀਤਾ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਇਹ ਵਾਲਾ।
ठीक है। स्ट्रेट लाइन नॉर्मल ड्रॉ किया 90 डिग्री ते, तुहानूं दस्सिया सी उपर ही, ठीक है। 90 डिग्री ते जिहड़ा नॉर्मल ड्रॉ किया है, बिलम ड्रॉ किया है। हुण इत्थे की होएगा, कच चों बाहर आ रही है हवा दे विच, ते लाइट बैंड करेगी ते करेगी, पर ऐदां बैंड करदी आ कि लाइट इदां पहले केस च की सीगा, लाइट अबिलंब वाल मुड़ गई सी ना। हुण इस केस च की होएगा, लाइट अबिलंब तो परां चले जाएगी, इस तरह परां वाल मुड़ जाएगी। दो केसिस आए, ठीक है। सो आपां देखते हैं अगे, यह साढ़े कोल आ गई हुण निर्गामी किरण, निर्गामी यानी इमर्ज होगी, बाहर आ गई, इमर्जेंट रे। हुण तुसीं अगर इत्थे एक चीज़ नोटिस की होवे कि असल च जिहड़ी रे आ वो इधर आ रही सी, ओरिजिनल रे उहदी डायरैक्शन यह सी, दिशा उहदी इधर ही आ, ते बेटा जिहड़ी हुण साडे कोल इमर्ज हो के आई उहदी भी दिशा उधर ही है, दिशा विच कोई फर्क नहीं आया। हाँ, वो अपनी जगह तो इन्नी डिसप्लेस कर गई, इन्नी हिल गई आ, ठीक है। सो इत्थे पी क्यू की है साडे कोल, लेटरल डिसप्लेसमेंट, वो इन्ना हिल गया अपनी जगह तो। सो वट इज़ पी क्यू, जिन्नी एक पॉइंट जिन्नी भी आएगी, ये डिपेंड करती बेटा कि जिहड़ा आपां स्लैब लैने वो किन्नी थिकर आ, ठीक है। जिहड़ी कच दी स्लैब या जिहड़ा माध्यम लै रहे हो किन्ना थिकर है, किन्ने थिकनेस दे विच जा रही है। सो जिन्नी थिकर जाएगी उन्नी ही वो बैंड कराएगी। सो ये चीज़ ध्यान रखनी है। थिकर का मतलब वो उन्ने मॉलीक्यूल्स उन्ना ही उहदा प्रभाव स्ट्रोंग हुंदा है, और उन्नी ही वो दूजी प्रकाश की लाइट नूं घट कराउण च काम करदी है। सो क्लीयर। सो जिन्ना ज़्यादा गाढ़ा मीडियम होएगा, जिन्ना ज़्यादा थिकर मीडियम होएगा, सो उन्नी ही बेंडिंग आएगी लाइट की ओरिजिनल दे विचों। क्लीयर पॉइंट। सो आपां इत्थे केस करदे हां कि जदों रेयर टू डेंसर जाती है लाइट, मतलब हवा रेयर सी, विरला सी, घट घनता तो ज़्यादा घनता वाल एंटर करदी आ, ते हमेशा रे जिहड़ी है मूव करदी नॉर्मल वाल, मतलब किरण जिहड़ी आ सीधी जाण दे बजाय अबिलंब वाल मुड़ जाती आ। इंपॉर्टेंट चीज़ां ने याद रखनियां ने, किधर मुड़दी आ, अबिलंब वाल। ते दूजे केस च की सी, जदों डेंसर गाढ़े मीडियम तो संघने मीडियम तो बाहर निकलदे घट मीडियम घनता वाले च। सो किरण की करदी उस अबिलंब तो परां मुड़ जाती आ, यह बिलम सी ना, ये तो दूर चली गई। सो दोनों केस करने इंपॉर्टेंट है। क्लियर पॉइंट, सारा क्लियर है, ठीक है। सो दो केसेस आए, रेयर टू डेंस यानी घट घनता तो ज़्यादा विच की आना, अबिलंब वल मुड़नी आ, ते ज़्यादा तो रेयर वाल जो जाएगी, मतलब वध तो घट घनता वाल जाएगी, ते दूर चले जानी आ। क्लियर। सो इत्थे आई की सी आपाती कोण, ठीक है, और आर किया अपवर्तन कोण। क्लियर पॉइंट्स। और पी क्यू इज़ लेटरल डिसप्लेसमेंट, जिन्नी ज़्यादा थिकर और जिन्ना ज़्यादा मोटाई होएगी या जिन्ना ज़्यादा संघना होएगा माध्यम, उन्नी ही उहदे च कैपेसिटी होएगी कि लाइट रे नूं बेंड करवा सके। सो इसे करके हवा ले लो, कच ले लो, ठीक है। सो कच की ज़्यादा स्ट्रोंग पावर होएगी कि लाइट नूं ज़्यादा बेंड करा सके, ठीक है। सो इहदे विच उहदी वैल्यू ज़्यादा होएगी। सो अगे चलते हैं, हुण इहदे कुछ रूल्स पढ़ते हैं। रूल्स पढ़न तो पहले असी पिक्चर भी नाल देखते हैं, ठीक है। सो अपवर्तन के नियम यानी रूल्स फॉर रिफ्रैक्शन किया, आपाती किरण ए वाली, अपवर्तित किरण जिहड़ी अपवर्तित हो रही है, दो माध्यम लैने, सिर्फ दो माध्यम दे विच एक दो ते एक है नॉर्मल, ठीक है। अबिलंब, आपाती किरण, अपवर्तित किरण अते अबिलंब सारे एक ही तल विच हुंदे ने, किहड़े, जदों दो माध्यम लए होण जिन्हां विच अपवर्तन हो रहा होवे, ठीक है। द इंसीडेंट रे, रिफ्लैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस, इंटरफेस मतलब जिहड़ा वो सरफेस आ ऑफ एनी टू गिवन मीडियम्स आर लाई इन द सेम प्लेन। क्लीयर। सो दूजा की कहंदा, दूजा कहंदा जिहड़ा आई आ ओवर आर यानी प्रकाश के आपातिक कोण दे साइन अते अपवर्तन कोण दे साइन का अनुपात कॉन्सटेंट यानी स्थिर हुंदा है, यानी साइन आई एक फॉर्मूला है बेटा, ठीक है। सो साइन आई ट्रिग्नोमैट्रिक रेशोज़ हैगे ने 6, तुसीं मैथ्स भी करोगे या कीतियां होणगियां। सो साइन आई ओवर साइन आर इज़ इक्वल्स टू स्थिर अंक, इहदी वैल्यू फिक्सड हुंदी है, स्थिर हुंदी है, ठीक है। और इहदा कोई भी यूनिट नहीं आंदा। द रेशो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसीडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ कॉन्सटेंट, मतलब ये वैल्यू कॉन्सटेंट है।
ਸੋ ਦਿਸ ਲॉ, ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਸਨੈਲ ਲॉ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਨੈਲ ਦਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਨੈਲ ਲॉ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਨੈਲ ਲॉ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਿਯਮ ਲਿਖੋਗੇ, ਸਾਈਨ ਆਈ ਓਵਰ ਸਾਈਨ ਆਰ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਸੋ ਇਹ ਸਥਿਰ ਅੰਕ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅੰਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाउ अगर मैं टर्म की गल करा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा वो चीज़ आ, एक पावर आ, एक कैपेसिटी आ किसी भी माध्यम की कि वो लाइट रे नू किन्ना बेंड करवा सकता, उसकी पावर कितनी स्ट्रोंग है लाइट रे नू बेंड करवाने दी। ठीक है, सो उन्होंने असी कहने स्नैल लॉ, उस नियम नू असी स्नैल लॉ का नाम सॉरी उस नियम ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਨੈਲ ਲॉ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਵਰ ਆ ਬੈਂਡ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਨਾਓ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਾਈਟ ਦੀ ਕੁਝ ਸਪੀਡਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ ਮੇਨ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨ ਵੈਕਿਊਮ, ਵੈਕਿਊਮ ਹੁੰਦਾ ਨਿਰਵਾਯੂ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਦੀ ਉਹ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ। सो स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की चाल सब तो ज़्यादा मैक्सीमम आ कितनी आ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ। क्लीयर। सो ए तुसी याद रखना स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम यानी निर्वायु यानी वो सब तो ज़्यादा स्पीड की लाइट होंगी कितनी आ 3 × 10⁻⁻⁰ मीटर ओवर सेकेंड। ठीक है। सो इतने देखो एक छोटी सी पिक्चर मैं ड्रॉ की हुई है। ये तुम देखो कि अगर मैं दो माध्यम ले, सो फर्स्ट माध्यम एंड सैकेंड माध्यम यानी मीडियम 1 एंड मीडियम 2, लाइट मीडियम 1 च जाके मीडियम 2 विच जा रही है। क्लीयर। अगर मैं मन्ना कि चाल जड़ा आ वो माध्यम 1 विच V1 आ ते चाल माध्यम 2 विच V2 आ, मतलब कि चाल प्रकाश की चाल, लाइट की चाल, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है। वैसे आप वेलोसिटी भी वर्ड यूज़ करते, बट तुम 9 च किया है कि वेलोसिटी के विच डायरैक्शनस भी आ जांदियां ने। क्लीयर। सो इस करके वी चाल दे नाल जो डायरैक्शनस आते हैं आप वी फॉर वेलोसिटीज़ काउंट करते हैं। ओके। सो चाल माध्यम 1 विच मान लेने V1 है, चाल माध्यम 2 विच V2 आ। सो एन जो लैटर आ आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नू अपवर्तन अंक नू डिनोट करने लिए लिखते हैं। ठीक है। एक होर साइन होंदा बेटा ये विच म्यू। ठीक है। म्यू म्यू। ठीक है। सो म्यू 2 1 क्यों पाना है, मतलब मैं वेखना कि 2 दे विच 1 दे अकॉर्डिंग किन्नी अपवर्तन अंक आ, ओदा मतलब किन्ना उन्ने उन्होंने बेंडिंग करवाई आ। ठीक है। सो इनू आप 2 1 लिखांगे। सो माध्यम 1 विच चाल दा फॉर्मूला होंदा ओवर माध्यम 2 विच चाल किन्ने। सो इहदा फॉर्मूला क्या है N21 इज इक्वल्स टू, दोनों सेम होंगे बेटा, सो V1 ओवर V2। क्लीयर। सो V1 ओवर V2 अगर आप V1 की वैल्यू भरांगे V2 की वैल्यू भरांगे, जो उन्होंने रेशो आएगा, जो उन्होंने रिजल्ट आएगा वो साढ़े कोल जड़ा भी आप दूजा माध्यम वेख रहे हैं ये साढ़े को रिफ्रैक्टिव अंक की यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तन अंक की वैल्यू आ जाएगी। क्लीयर। सो आप अगे चलते हैं, इनू असी थोड़ा जिहा शिफ्ट कर लेने। देखो इत्थे दोनों च फर्क आ, इत्थे मैं अगर N12 लिखा मतलब 1 दे विच अकॉर्डिंग टू 2 देखा तो तड़ी रेशो उल्टी हो जाएगी, V2 ओवर V1 हो जाएगा। क्लीयर। मैं 1 की देखनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना तो उल्टा कर दोगे। क्लीयर पॉइंट। तो जे मैं 2 दे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना है 2 दे विच कितनी कैपेसिटी आ, तो फिर पहले वाला 2 दे विच विद रिस्पैक्ट टू 1, जे मैं 1 दे विच वेखना विद रिस्पैक्ट टू 2। ठीक है। 2 चो लाइट अगर 1 च जा रही है तो फिर ए वाला फॉर्मूला लगेगा, अगर 1 चो 2 च जा रही है तो ए वाला फॉर्मूला लगेगा। क्लीयर। सो जेकर माध्यम 1 सो कहता नैक्सट की है, कहता जेकर माध्यम 1 हुण की कहना जेकर माध्यम 1 निर्वायु है या वायु है, मतलब उन्हें निर्वायु वैसे वायु च थोड़ी जी स्पीड घट होंगी बट लगभग ऑलमोस्ट उन्होंने सेम ही लै लेंदे आ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है। सो कहता अगर एक हवा च लाइट जा रही है, किसी जल पानी च जा रही है, गलास च जा रही है, कच च जा रही है, किसी भी होर तरल हीरे च जा रही है, किसी भी माध्यम च जा रही है, ट्रांसपरेटेड जड़ा मटीरियल आ, कहता ओदी ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ पहला माध्यम आप मान लेने हवा आ या वायु आ। ठीक है। निर्वायु भी लै सकते हैं अगर है तो उस केस च आप चाल C लवांगे। ठीक है। सो C की वैल्यू तुहानूं दसी सी सब तो ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम।
ठीक है। सो दिस इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ਇਹ ਸਭ ਨੇ ਲਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਈ ਹਾਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਧਿਅਮ ਨੂੰ ਮੀਡੀਅਮ m ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ। ਸੋ nm ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਚਾਲ, ऑब्वियस है पहले मीडियम के ऊपर आएगी और नीचे माध्यम विच प्रकाश की चाल। सो यह फॉर्मूला नॉर्मल है, लर्न हो गया। सो एन एम इज इक्वल्स टू सी ओवर वी। वट इज़ सी? हवा विच प्रकाश की चाल। सो अगर सानू दिता होएगा वी की वैल्यू, मान लो पानी दे विच दित्ती, पानी दे विच ऑलमोस्ट वो 2 × 10⁸ हो जाती है। तो ये 3 × 10⁸ है। कटिंग्स करने तो बाद समथिंग साढ़े कोल 1.33 के राउंड आ जाता है, ठीक है। सो पानी दे विच अगर देखे तो यदी वैल्यू आ जाएगी 1.33, ठीक है। सो पानी का अपवर्तनांक कितना आ गया? 1.33। सो ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब ਆ? ਇਹਦਾ मतलब है कि हवा विच प्रकाश का वेग जिन्ना आ ਅਤੇ पानी विच प्रकाश का वेग जिन्ना आ वो 1.33 नहीं सी पढ़ना बेटा, सानू डिजिट्स किवें पढ़ी दे 1.33 यानी 1.33 अनुपात है। क्लियर? यानी रेशो है। सो इसका मतलब की है कि जड़ी रेशो आई है प्रकाश का वेग, ठीक है, हवा विच ओवर पानी च प्रकाश का वेग वो कितना आया मेरे को? 1.33। क्लियर? यूनिट नहीं होंदा किसी भी प्योर क्वांटिटी दी जड़ी रेशोज़ होंगे ना यूनिट नहीं लिखते, क्योंकि यह भी चाल आ। ਇਹਦਾ भी अगर पिछे लिखांगे मीटर पर सैकेंड लिखांगे और इत्थे भी मीटर पर सैकेंड लिखांगे, दोनों कट्टे जाते हैं। इस करके ਇਹਦਾ कोई यूनिट नहीं होंदा पिछे भी किसी भी रेशो का। क्लियर होया पॉइंट है वाला? सारे ने तुसीं ये नोट भी करना कॉपी ते और रिवाइज भी करना, ठीक है। ऑल द बेस्ट। ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ ਲੈਂਸਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਦਰਪਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਵਿਲ ਬੀ lenses and their types, ठीक है। थैंक यू।